Welcome students. Students, today we are going to discuss the term symbols of the D2 configuration. I told you that D2 configuration is term symbol we will discuss. Now D2 configuration means what? See, we have this 5 orbital D2 configuration means 2 electron will be there. This is one and this is the other. 2 electron will be there. These 2 electron can be filled in different ways also. It can be filled in like this also, means one electron in each orbital, or it can be filled in many more ways also. So what are the different ways to fill this 2 electron, that we will study now. Okay, we can fill this electron in like this also, or we can fill this electron, both the electrons in one orbitals also, in one orbital like this also we can fill, or we can fill this is one here and this one here. So many ways are there to fill this 2 electrons. So we will study that, and with that, by the arrangements we will derive the term symbol. So at first we know that this is our formula. This is the formula which we will use to derive the term symbol, and we know that D2 configuration means we have only 2 electron, and now we will proceed further. So how to write that I will tell you afterward. First just listen and understand, try to understand what are the terms, how we are deriving all this, just try to understand. Afterward I will tell you how to write in sequence all these things. Okay, so now this much you understood that 2 electrons are there. Now come, see, at first we have to write this. See, we are studying D2. D2 means d orbital. Okay, d orbital is involved. Now d orbital means we have this one, this thing you know, L, this thing you know, L, 0, 1, 2, 3, 4 means S, P, D, F and G. Okay, this is the symbol we are using. For 0 we are using S symbol. Like this symbols we are using for each term. So here we are having d orbital. D orbital is involved. It means which number we are having? D orbital means it is 2. 2 for d orbital. So we can write for D. See here, for D L is 2. Now we can write like this. For D we can write L equal to 2. We can write. Now we have 2 electron. Now for 2 electron we can write L1 equal to 2 and L2 equal to 2. Okay, for 2 electron. For 2 electron we will write, what is this 2? This is the orbital. This is the orbital. N means orbital. This is the orbital. And each electron, this is 1 electron, this is for 1 electron, and this is for other electron. This is for this orbital is for 1 electron, this orbital is for the other electron, means L1 and L2. We can write 2, 2. Now we have one formula, L equal to this formula, L1 plus L2, L1 plus L2 minus 1, like this, and L1 minus L2. This is for orbital. By this formula we will get L, and by the other formula, by this formula S, we will get the value of S. L and S. We want L and S. L is spin, total spin, and L is total orbital. Okay, समझ में है? L means total orbital and S means total spin. These two value we want. After that we'll proceed further. So let us derive the values. L का formula ये है, L1 plus L2, L1 plus L2 minus 1, and like this we have to go on. At last this is modulus. इसका मतलब L1 माइनस L2, जो भी आंसर आएगा अंदर वो पॉजिटिव होकर ही बाहर आएगा. जैसे 2 ऐसे लिख दो, ऐसे स्ट्रेट रॉड लगाते हैं ना, मैथमेटिक्स वालों को पता होता है. तो जो भी आंसर सपोज माइनस में आएगा तो फिर भी वो प्लस होके ही बाहर आएगा. इसका मतलब 2 स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है. ठीक है, स्टडी करते फिर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, नाउ वी हैव L1 L2 की वैल्यू है हमारे पास. पुट दोज वैल्यू, L1 इक्वल टू 2, L2 इक्वल टू 2. पुट दोज वैल्यू, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 - 1 3, और इसका क्या आएगा? इसका 0. L1 - L2 मीन्स 2 - 2 0. तो बीच की वे नंबर हमको लिख लेने हैं. इससे हमको मिला 4, इससे हमको मिला 3, और ये दो तो नहीं है, इससे हमको मिला 0. तो बीच के हमने वैल्यू 2 और 1 हमने लिख लिए, क्योंकि
प्रोसीड करना ना, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक प्रोसीड करना है। तो इसका 4 है, इसका 3 है, तो बीच के जो वैल्यूज़ है वो रहेंगे 2 1 और लास्ट का वैल्यू 0 है। तो ये बीच के वैल्यूज़ मन से लिखना है हमको, इसके आगे के और इसके पहले के वैल्यूज़ लिखना है बीच के। तो ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद 4 3 2 1 0 ये आ गए। अब 4 का मतलब क्या होता है, L इक्वल टू 4, ये L है। L इक्वल टू 4 मतलब देखो सेम वही, L इक्वल टू 4 छोटा L लिखो या बड़ा L लिखो, वो ऑर्बिटल ही होता है, ठीक है। अब ये 4, ये 3, 4 मतलब G, 3 मतलब F, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 आया तो हमने लिखा G, 3 मतलब F, 2 मतलब D, 1 मतलब P, 0 मतलब S। समझ में आया, ये सिंबल है, ये 4, ये 0 1 2 3 4 के लिए सिंबल है S P D F G, ठीक है। मतलब L के लिए ये सिंबल आ गए हमारे पास। जो ऑर्बिटल है इसके 4 3 2 1 0 वैल्यूज़ निकली है इस ऑर्बिटल के, और उसके हमने सिंबल लगा दिए, सिंबल लिख लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद S1 जो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इस इसमें D2 केस में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन है हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी है हाफ, ठीक है। अब हम ये S टोटल स्पिन है, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, S1 प्लस S2, सेम वैसे ही फॉर्मूला है, बस L का जगह S लगाना है। S1 प्लस S2 S1 प्लस S2 माइनस 1 ऐसे से जाना है, और फिर S1 माइनस S2। अब देखना इसमें हाफ प्लस हाफ, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी हाफ है, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये भी हाफ माइनस हाफ 0 हो गया। करके देखना तुम्हें 1 और 0 मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, इसका 0 मिलेगा, इसका भी 0 मिलेगा। अब जब यहाँ पे 0 मिल गया तो इसके बाद 0 0 0 0 ही आएगा, है ना। तो 1 और 0 लिखेंगे हम लोग। अभी ये हो गए टोटल स्पिन आ गया 1 और 0, ठीक है। 1 और 0 आ गए टोटल स्पिन की वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे मल्टीप्लिसिटी मैंने बताया, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s + 1। अब जब दो वैल्यू है टोटल स्पिन की, एक वैल्यू 1 है एक वैल्यू 0 है, तो दोनों वैल्यू के लिए हम लोग मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। तो जब s इक्वल टू 1 है तो मल्टीप्लिसिटी आएगी हमारी, इसमें 1 पुट करना है तो मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी। अगर s इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम लोग तो मल्टीप्लिसिटी आएगी 1। कुछ नहीं, जस्ट पुट करना है, इसके अंदर 1 पुट करो एक बार और इसके अंदर 0 पुट करो, तो ये दो वैल्यू मिलती है 3 और 1, है ना। मल्टीप्लिसिटी की मैंने बताया था इसके पहले फॉर्मूला जो हमने लिखा था, हमने फॉर्मूला कौन सा लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था ना हमने, L इक्वल टू 2s + 1 और J, ये फॉर्मूला लिखा था, मैंने बताया था। तो इस फॉर्मूला में L छोड़ो अभी, फिलहाल ये वाला हमने इसको मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं 2s + 1। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं अभी, है ना, 2s + 1, ये दो मल्टीप्लिसिटी निकाल ली है, 2s + 1 2s + 1, 1 के लिए और 0 के लिए 2 आ गए मल्टीप्लिसिटी। तो बस हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है। अभी यहाँ पे L की बहुत सारी वैल्यूज़ निकली है हमारे पास। कौन कौन सी निकली है L की वैल्यूज़, S P D F G ये निकली है, और मल्टीप्लिसिटी भी हमने निकाली है। अब जस्ट पुट करो ऐसे, S P D F और मल्टीप्लिसिटी 1 1 1 1, और फिर दूसरा S P D F मल्टीप्लिसिटी 3 3 3 3, दो मल्टीप्लिसिटी है, और ये सारे हमारे L के वैल्यूज़ निकली। तो ये हो गया, यहाँ तक कर ली हमने। इससे हमको इसको बोलते हैं एनर्जी टर्म्स, जो हम लोग फाइंड करने वाले हैं। जो मैंने बताया D2 के हमको एनर्जी टर्म्स नहीं, D2 के हमको क्या फाइंड करने हैं, टर्म सिम्बॉल्स, इसको टर्म सिम्बॉल्स बोलते हैं, ठीक है। ये D2 के टर्म सिम्बॉल्स है, पर इतने सारे नहीं हैं, जितने आए हैं इसमें से कुछ सिलेक्ट करना है हमको। जैसे ये है, इसमें से सिर्फ चार सिलेक्ट करना है हमको। अभी 4 कौन से सिलेक्ट करना है उसके लिए एक बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतने सारे जो मिले हैं हमको, ये फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, इतने सारे टर्म्स, ये सारे टर्म सिम्बॉल्स हैं, लेकिन D2 के टर्म सिम्बॉल सिर्फ 4 ही है, इतने सारे नहीं हैं। तो इसमें से हमको सिलेक्ट करना है, तो कौन कौन से हमें सिलेक्ट करना है उसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी टेबल ड्रॉ करेंगे।
टेबल ड्रॉ करने से हमको वो 4 जो हमारे टर्म सिम्बॉल्स है D2 के वो मिल जाएंगे। चलो देखो ये हमारा टेबल है, इस टाइप का टेबल बनाना है हमको। ये टेबल कैसा है, इस टेबल में क्या बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं 5 ऑर्बिटल के अंदर। ये हमारे 5 ऑर्बिटल है। मैंने कहा था कि ms की वैल्यू देखो, ms की वैल्यू l के ऊपर, अभी हमारा l इक्वल टू 2 है, इसमें d ऑर्बिटल है तो l इक्वल टू 2 है तो उसकी ms कितनी होगी, ये l इक्वल टू 2 है ना हमारे पास, l इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 2 है तो इसकी ml वैल्यू कितनी होगी, ml वैल्यू होगी +2 +1 0 -1 -2 ये होगी, है ना। तो वो हम लोग 5 ऑर्बिटल में लगा लेंगे। देखो बीच में 0, ये हो गया 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, जो 5 ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में होते ये 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल में 1 0 बीच में लिखते हैं हम लोग, इस तरफ +1 इस तरफ -1 +2 -2, ठीक है। इस तरह लिख लेना है हमको सबसे पहले, और उसके बाद हमको सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में अरेंज करना है। तो कितने अरेंजमेंट्स करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के 45 अरेंजमेंट्स मिलते हैं हमको। मतलब हम 2 इलेक्ट्रॉन को 45 टाइप में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये वाला, देखो ये वाला 45 टाइप में अरेंज कर सकते हैं, लिखा है बराबर, 0 बीच में लिखा है। ये 5 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। एक सबसे पहले ये किए, जो पहला वाला ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया अपोजिट स्पिन में। उसके बाद हमने क्या किए, कैसे अरेंज किए, 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरफ, 1 इलेक्ट्रॉन को दोनों भी ऊपर ऊपर स्पिन। सेकेंड बार में फिर एक ऊपर स्पिन एक नीचे स्पिन, फिर एक नीचे एक ऊपर, फिर दोनों भी नीचे, फिर भी ये हो गए। अब इसको छोड़ दिया, अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सेम वैसे ही पहले दोनों ऊपर, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर एक नीचे एक ऊपर, फिर दोनों नीचे, सेम वैसे ही करना है सबके साथ। एक बार फिर ये हो गया, फिर इसमें एक बार ऊपर, फिर ये वाला ऑर्बिटल लेना है, दोनों ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर दोनों नीचे, इस टाइप करके ऐसे सारे अरेंजमेंट्स करने हैं हमको। देख लो ये सारे अरेंजमेंट, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर सेकेंड ऑर्बिटल पकड़ना है, सेकेंड ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन डालना है एक साथ, फिर इन दोनों को अलग अलग करना है। इसमें भी दोनों ऊपर एक नीचे के ऊपर, ऐसे कर करके हमारी ये कितने अरेंजमेंट्स हो गए, 30 अरेंजमेंट्स हो गए। और 30 अरेंजमेंट्स और फिर से यहाँ पे पूरे 45 अरेंजमेंट्स है। एक बार पढ़ना, ध्यान से देखना, फिर करके देखना ये अरेंजमेंट्स, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है और बहुत जल्दी है। ये दिख रहा है इतना बड़ा है 45 अरेंजमेंट्स, लेकिन एक बार तुम करके प्रैक्टिस करोगे ना, फटाफट 1 मिनट भी लगेगा नहीं करने के लिए, ठीक है। विद इन 1 मिनट्स यू विल राइट दिस टेबल। तो अभी ये मत देखो, सिर्फ इतना ही देखो, ये पार्ट मत देखो कि तुमको ऐसे अरेंजमेंट करने। ये अरेंजमेंट हो गए, 45 अरेंजमेंट्स कर दिए हमने D2 के 2 इलेक्ट्रॉन के। उसके बाद हमको MS निकालना है और ML निकालना है। अब MS मतलब क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसका स्पिन, MS मतलब स्पिन और ML मतलब ऑर्बिटल। अब ये कैसे निकला, यहाँ पे है 0 कैसे आया, इसका हाफ माइनस हाफ, नीचे वाला को हम लोग माइनस लिखते हैं, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस हाफ लिखते हैं,